Hello students, good morning to all of you. Today once again I am live now and we discuss first assignment of narration. Question first, define narration and its kind. So what is narration? The narration is a grammatical term. It has been coined from the word narrate, which means to take an action or say something to someone. It has two kinds. First, direct narration or indirect narration. Now question number 4. Question number 2 and 3 you do it by self from the given uh, pages, and now we come at question 4 ka A. We just solved the question. You have already given the question. I am just solving the question. He told his parents that he had done his best and could do no more. Question second. The dying man told his son that he was leaving him a treasure buried in his field. Question C. She told me that her father had gone to Mumbai last week. Question 4. The doctor told him that he had fallen ill because he had overeaten the previous day. Question E. He told his son if ya whether. This is interrogative sentence. In interrogative sentence we use if ya whether in place of inverted comma. So here we will write he said to his son if ya whether he had seen the Taj Mahal. He asked me if ya whether I played hockey. Question number G. The servant asked if ya whether he should lay the table then. Now को चेंज करके you will write then. Question H. His father asked him why he had misbehaved. We don't put here if ya whether because question start from WH question. In case of WH question you don't put if ya whether. I. He asked her if ya whether she could lend him her umbrella. Question J. The teacher asked Ganesha why he was not taking the examination. So students, after solve this assignment we start your moments book. I have already told to all of you after complete the narration we start the moments book chapter first. Name of the chapter first is The Lost Child. The Lost Child.
In this lesson, we will read how a child lost in the fair. So we start the chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह खुश है, उत्सुक है और वहां फैले मिठाइयों और खिलौनों को लेना चाहता है. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी उन्हें खरीद के नहीं देते हैं. So, but his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसे टॉयज या स्वीट्स खरीद के नहीं देते हैं. Why then does he refuse when someone else offer them to him? फिर वही बच्चा किसी औरों के द्वारा दिए गए मिठाइयों और टॉयज को लेने से क्यों इनकार करता है? We will know this answer of this question after reading this lesson. So we start the lesson. It was the festival of spring. ये जो फेयर लगा था ये स्प्रिंग सीजन में लगा था. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shade that means winter season अभी हाल में ही खत्म हुआ ही था. पूरा गली मोहल्ले नए नए कपड़े लोग पहन के बाहर गलियों में आए थे. Clad that means clothes, galley that means happily. अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब लोग बाहर आए थे. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock cart. कुछ टहल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवारी कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी सवारी हो रहे थे. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा जो अपने फादर के पैरों के पास पैरों के बीच दौड़ते हुए आया था. ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है कि खुशी बहुत ज़्यादा जब कोई खुश होता है. जैसे सपोज करते हैं ग्लास में पानी जब पूरा फुल ग्लास है तब फिर भी हम पानी डालते हैं और वो ग्लास से पानी नीचे टपकने वाला होता है तो उसको बोलते हैं ब्रिमिंग ओवर. तो जब किसी की खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोला जाता है ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर जीवन और खुशियों के बीच उसे ब्रिमिंग ओवर हो रहा था बच्चों को. चूंकि वो नए नए मेले में आया था तो मेले को देखने के लिए उसे बहुत ज्यादा ही अंदर से एक्साइटेड था. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ. उसके फादर माता पिता उसे बुलाए. एज जैसे कि वो पीछे रह गए थे. लेग्ड बिहाइंड दैट मीन्स पीछे रह गए थे. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. खिलौनों से जो मेले में बहुत ज़्यादा खिलौना स्वीट्स सब आया था कतारों में वहाँ लगे हुए थे. उस चीज को देखने में उससे वो आकर्षित फैसिनेट दैट मीन्स अट्रैक्टिव होकर पीछे रह गया. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call. वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर जाता है चूंकि उसका जो पैर है अपने फादर्स के बुलावे पर काफी
आज्ञाकारी था, वो बहुत ही आज्ञाकारी है। हिज आई स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉय, उनकी आंखें, उस बच्चे की जो आंखें हैं अभी भी वहां फैले टॉयज खिलौने पर लिंजरिंग दैट मीन्स टिका हुआ है। As he came to where they had stopped to wait for him, और जैसे ही वो आया, वे लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart, वो बच्चा अपने दिल की इच्छाओं को दबा नहीं सका। Even though he well know the old cold stare of refusal in there, जबकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था अपने फादर्स के पुराने आदतों को कि वो किसी भी सामान को देने में मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, लेकिन तब फिर भी वो बच्चा अपने दिल में इच्छाओं को दबाकर नहीं रख सका। I want that toy, he pleaded. Pleaded that means requested. वो बच्चा कहता है कि मैं वो खिलौना चाहता हूं। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. उसके फादर बच्चे की तरफ लाल आंखें, दैट मीन्स गुस्से से भरे आंखों से देखा, जैसे फैमिलियों में टायरेंट में, दैट मीन्स जैसे कोई भी एक तानाशाह रूप में कोई भी फादर बच्चे के प्रति तानाशाह रूप में कुछ कुछ फादर होते हैं, तो वही तरीका उन्होंने उस मेले में भी अपनाया। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उसकी माँ कोमल हुई और बच्चे को फिंगर देती है, पकड़ने के लिए कहती है, और कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग mustard fill, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. कहता है कि देखो तुम्हारे सामने फैला मस्टर्ड फील्ड, दैट मीन सरसों का खेत है जो पीला और पूरी तरह से सोने के जैसा दिखता है। इट स्वेप्ट अक्रॉस, जो फैला हुआ है कहां पे, लैंड पे, मीलों दूर तक। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, dragonflies का हिंदी होता है अजगर मक्खियां, जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती है उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, जो वहां पे बस्टलिंग दैट मीन्स इधर उधर उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गॉडी, गॉडी दैट मीन्स ब्राइटनेस, पर्पल विंगों के से, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower, जो फूलों से बी मधुमक्खी या तितलियां जो फूलों से स्वीटनेस को शक करती है, उसे वो ड्रैगन फ्लाइज बार बार उसे तंग कर रहा था, उसे वहां पे बैठने के लिए नहीं दे रहा था, उसे इंटरसेप्ट करना दैट मीन्स उसे बार बार वो तंग कर रहा था। The child followed them in the air with his gaze. बच्चे टकटकी लगा के उसी की ओर, The child followed them, बच्चे उसकी ओर भाग रहा था, in the air with his gaze, till one of them could steal its wings and rest he would try to catch it.
वो जो अजगर मक्खियां थी, बच्चे उसे बार बार जैसे ही वो बैठता था या जैसे ही वो उड़ने का प्रयास करता था तो बच्चे उसे पकड़ने का प्रयास करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जो ही बच्चा उसे पकड़ने का प्रयास करता था वो हवा में उड़ जाता था। फ्लैपिंग करना दैट मीन्स फ्लटरिंग करना, दैट मीन्स उड़ना। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on to the footpath." एक उसकी माँ फिर उसे कॉशनरी कॉल, दैट मीन्स एक वार्निंग दे के बुलाती है, आओ बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वह अपने माता पिता की ओर हैप्पली, गेली दैट मीन्स हैप्पली दौड़ता है, एंड वॉक्ड और चलते हुए एब्रेस्ट ऑफ देम उन दोनों से आगे निकलता है, फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए, बीइंग इसी दौरान, सुन लेफ्ट कुछ तुरंत ही वो पीछे फिर हो जाता है, इसलिए पीछे हो गया कि वहाँ छोटा छोटा लिटिल इंसेक्ट, छोटा मोटा जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फुटपाथ पे जो धूप सेकने के लिए जो निकला हुआ था वे उसके साथ खेलने लगता है। Come child, come, his parents called. His parents called from the set of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके फिर माता पिता उसे बुलाते हैं, जो एक छोटे से ग्रोव दैट मीन्स होता है लिटिल ट्री, जो बहुत ही छोटा छोटा जो वृक्ष होता है उसी की छाया में कुएं पर, वेल दैट मीन्स कुएं पर उसके माता पिता बैठे हुए थे, वहीं से अपने बच्चे को बुलाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। ए शोर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, फूलों, छोटे छोटे फूलों का जो कली कह सकते हैं, बच्चे के ऊपर गिरता है। एज ही इंटर द ग्रोव, जो ही वो उस छोटे वृक्ष की ओर जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अचानक वह अपने फादर को भूल जाता। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स, पेटल्स दैट मीन्स फूलों की पंखड़ियों को वो उठाने लग जाता है। बट लो ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और जैसे ही वो डव, डव दैट मीन्स बर्ड, बर्ड की क्यूइंग दैट मीन्स आवाज, जैसे ही बर्ड की आवाज उसे सुनाई पड़ता है वे अपने पेरेंट्स की ओर फिर भागता है, शॉटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और वो जो रेनिंग पेटल्स था, जो पंखुड़ियां था, वो उसके हाथ से कहीं गिर जाता है। कम चाइल्ड कम, देन called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं। who had now, जो अभी विल्ड कैपर्स, जो विल्ड कैपर्स का मतलब होता है गोल गोल घूमना, कहाँ गोल गोल घूमना था, बनियान ट्री, जो बरगद का जो वृक्ष होता है, बरगद वृक्ष के चारों ओर वो गोल गोल घूम रहा था। फिर वहीं से उसके माता पिता उसे बुलाते हैं। गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो, और एक नैरो जैसा वहां से रास्ता, फुटपाथ जाता है मेले की तरफ। थ्रो द मास्टर्ड फील्ड, उसी मास्टर्ड फील्ड से एक नैरो, एक संकीर्ण रास्ता मेले की तरफ जाता है। एज दे नियर द विलेज, द चाइल्ड कुड सी many other footpaths full of thorns,
converging of the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they entered the village, जैसे ही वो विलेज की तरफ इंटर करता है, द चाइल्ड कुड सी, बच्चे वहाँ परे हुए, वहाँ आए हुए, थ्रोन्ज दैट मीन्स भीड़, लोगों का भीड़ जो वहाँ पे मेले में सब लोग आए थे, उसको देख के काफ़ी उसे अचरज फील होता है और वो काफ़ी उससे आकर्षित होता है बाय कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार, उसे लगता है कि यही पूरा संसार है जहाँ की वो इंटर कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, जो मिठाइयाँ वाला बेचने वाला है वो हॉकिंग करना, दैट मीन्स बोल बोल के अपने मिठाई बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet. मिठाइयाँ वाला बुलाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाबी, कहाँ से ये बेचता? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweet. That means वो जैसे ही मेला इंटर लोग करते हैं, वो उसी कॉर्नर पे मिठाइयों का दुकान लगाए हुए था जहां बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ है, और वो जो मिठाई वाला है वो जो अलग अलग मिठाइयों को अलग अलग साइज में, कोई छोटा साइज में, कोई बड़ा साइज, आर्किटेक्चर कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि वे अलग अलग रंग में भी है और अलग अलग हाइट पर लगाया है। अगर किसी प्लेट में रसगुल्ला है तो वो 1 किलो है, गुलाब जामुन है तो 3 kg है, तो उसका हाइट कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के हाइट में वो सारे स्वीट्स को अपने काउंटर पे लगाया है। डेकोरेटेड विद लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सारे पे सिल्वर और गोल्ड का जो लिप्स पत्तियां आता है उससे वो सजाए हुए हैं। The child started open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. Child अपने आंखों से वो देखता है, वहां पे स्वीट्स जो लगा हुआ था, और उसके मुंह में पानी भर आता है बर्फी के लिए। बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली ममर्ड, वो धीरे धीरे इस बात को कहता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded, because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. वो बहुत ही धीरे धीरे इस बात को बोलता है, लेकिन उसे पता था कि उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाएगा, उसे ये चीज़ अनसुना कर दिया जाएगा, उसे ये चीज़ नहीं मिलेगा। heeded that means listen, वो he would not be heeded, मतलब उसे सुना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स, चूंकि उसके पेरेंट्स यह कह के उसे नहीं देंगे कि वह क्या है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। जैसे ही आगे बढ़ता है, फ्लावर सेलर भी अपने फूलों को, अपने माला को बेच रहा है। ए चाइल्ड सिम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन, बच्चे वहां पे ना चाहते हुए भी चले जाता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ ममर्ड। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाता है जहां फूलें हिप्ड, गुच्छे में, समूह में रखा हुआ है। वे धीरे से बोलता है, वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट they were cheap, so without
वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे उसके फादर माता पिता ये देने से मना कर देंगे और ये कहेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये बहुत ही सस्ता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक मैन एक डंटा लेके खड़ा है और उस डंटे में येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का बैलून लिए खड़ा है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चे के मन में इस तरह की खुशी आनंद आता है तो उसे लगता है कि सारा का सारा बैलून्स वो अपने अंदर समेट ले। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये बैलून कभी भी खरीद के नहीं देंगे और यह कह के मना करेंगे कि वो इस तरह के बैलून से पहले कई बार खेल चुका है, वो अब बड़ा हो चुका है। So he walked on further, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, a snake charmer that means सपेरा अपने बांसुरियों को बजा रहा है, which coiled itself in a basket। जो स्नेक के लिए बजा रहा था, वो स्नेक जो है बास्केट टोकरियों में क्वाइल्ड होकर रखा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। हंस के गर्दन की तरह उस सांप का हेड भी ग्रेसफुल, काफी लाइटनेस वे से खड़ा है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और उसका म्यूजिक उनके इनविजिबल अदृश्य कानों को अपनी ओर चुरा रहा था, जिस प्रकार ए जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग दैट मीन देखिएगा पानी के ऊपर जो फव्वारा बनता है, कैसे वाटरफॉल को इनविजिबल करता है, उसी तरह से उसके म्यूजिक जो है उसके कानों को इनविजिबल कर रहा था। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। अपने पेरेंट्स को वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे मना कर देंगे, इस तरह का भद्दा म्यूजिक मत सुनो। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीड फर्दर, वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing, men, women and children carried away in a whirling motion। जैसे ही आगे बढ़ता है, वो झूला झूलते हुए खूब स्पीड में झूला झूलते हुए देखता है। Shrieked and cried with dizzy laughter, सब बच्चे उत्साहित हैं, खुश हैं। The child watched them intently and then he made a bold request। बच्चे इरादे से, काफी खुशी से उन लोगों की तरफ देखते हैं और फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से करते हैं। इस बार वो बोल्ड रिक्वेस्ट क्या करते हैं? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर। मैं भी इस झूले पर झूलना चाहता हूं, प्लीज फादर एंड मदर। So this is the lesson for today. We see again tomorrow for the next class. Thank you.